વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારને કેન્દ્રમાં 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 9 વર્ષના સુશાસન કાળ દરમિયાન જે કામગીરી કરવામાં આવી છે તે લોકો સુધી પહોંચાડવા જ અનેક મંત્રીઓ દોડતા થઈ ગયા છે. મહારાષ્ટ્રના મંત્રી વડોદરા શહેરની મુલાકાતે હોય ત્યારે ભાજપા કાર્યાલય ખાતે જ એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે ઘણા સમય પહેલા હું વડોદરામાં પ્રચાર અર્થે આવતો હતો. 2014 પહેલા જ ખૂબ ગોટાળાવાળા સમાચાર પણ સાંભળવા મળતા હતા. 2014 પછી 9 વર્ષમાં સામાન્ય લોકોના મનમાં લોકશાહી પર વિશ્વાસ ઊભો થયો છે. ગુજરાતનો વિકાસ આપ નિહાળી શકો છો ત્યારે મોદીજીને દેશનું સુકાન સોંપવામાં આવ્યું છે. 1989 પછી કોઈ પણ સરકાર પૂર્ણ બહુમતથી ન બની ત્યારે 2014થી મોદીજીના આગેવાનીમાં જ પૂર્ણ બહુમતીવાળી સરકાર બની છે. પછી સરકાર પણ રિપીટ થઈ અને સીટો પણ વધી. મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલનું જે નિવેદન આવી રહ્યું છે તેમાં જ તો કહી રહ્યા છે 48 કરોડ લોકોના બેંક એકાઉન્ટ જ નહોતા. ત્યારે મોદી સરકારે તમામ જનધન યાત્રાના ખાતા ખોલાવવામાં આવે છે. 9 વર્ષમાં 25 લાખ કરોડ લોકોના એકાઉન્ટમાં યોજનાના માધ્યમથી ટ્રાન્સફર થયા છે. આજે દુનિયામાં સૌથી વધુ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ધરાવતો અને મોબાઈલ ધરાવતો દેશ એક ભારત છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના અહેમદનગરમાં મુસ્લિમો દ્વારા ઉર્સમાં ઔરંગઝેબના ફોટા લઈને ડાન્સ કરવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના મંત્રી ચંદ્રશેખર પાટીલે તેનું પણ નિવેદન આપ્યું છે. અમારા ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તાત્કાલિક એક્શન લેવાનો આદેશ પણ આપ્યા છે. અમારી સરકાર પોતાના આગ્રહ પર કામ કરી રહી છે તેનું પણ આ એક રિએક્શન છે. અહેમદનગર એ અહલ્યાબાઈનું જન્મસ્થળ કહેવાય. ત્યાં અહલ્યાબાઈની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાના છે. અહેમદનગર નામ અને સ્વીકાર નથી ત્યારે હવે તેનું નામ અહલ્યાનગર રહેશે તેનો પણ આ વિરોધ છે. આવા કૃત્ય મહારાષ્ટ્ર સરકાર નહીં સાંકી લે. આવા લોકો સામે એક્શન લેવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં 23 મંત્રીઓની જગ્યા ખાલી છે. મંત્રીઓની નિમણૂક ક્યારે થશે તેની પ્રતિક્રિયા પણ આપવાનું તેઓ કહ્યું છે. ત્યારે શિક્ષા માતૃભાષામાં હોવી જોઈએ. પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી છે જેને લઈને જ મહારાષ્ટ્રમાં તમામ શિક્ષણ નીતિ માતૃભાષાનો ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રતાપગઢના સાતારા જિલ્લામાં જ મુસ્લિમ ધર્મના સ્થાનોના નામે એક મોટા દબાણો હતા. આ દબાણો પણ હટાવવા પડે તેવા છે. ત્યારે દરગાહ અને મસ્જિદોના ગેરકાયદેસર દબાણો મામલે પણ તેઓએ નિવેદન આપ્યું છે. अभी जो योजना चल रही है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय सांसद महोदया ने विस्तार से बताया कि माननीय मोदी जी के पंतप्रधान पद को 9 साल पूरे हुए तो इस 9 साल में जो उपलब्धियां है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रवास की योजना बनी है. उस योजना के तहत मैं यहाँ आया हूँ. इसका विस्तार से उन्होंने बताया ही है. मुझे खुशी है कि बड़ौदा शहर की मैं यदि यह कहूँ कि हर गली को मैं जानता हूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि 82 टू 95 13 साल हर 4 महीने में एक बार बड़ौदा में आता रहा. मैं विद्यार्थी परिषद का क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहा. बाद में आखिरी के दिनों में विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना. तो कई उस ज़माने के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज समाज के विविध क्षेत्रों में बड़े हुए हैं. तो उस समय साथ में उनके मैंने काम करने का मौका मुझे मिला. तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ. मैं योजनाएं क्या क्या मोदी जी ने बनाई और यशस्वी की इसके आंकड़ों में तो जाऊंगा लेकिन उसके बजाय मैं कुल मिलाकर जीवन के विविध क्षेत्रों में बेसिक परिवर्तन उन्होंने क्या लाया वो आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा. मुझे ये मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कम और आपके प्रश्न सुनना ज़्यादा ऐसा होता है. फिर भी मुझे थोड़ी तो जिसको कहेंगे कि शुरुआत करनी पड़ेगी. सबसे महत्व की बात 2014 को हम यदि याद करते हैं तो लोगों के मन में एक भावना निर्माण हुई थी जिसमें 2004 से 14 का एक ऐसा सरकार बना था जिसमें अलग अलग प्रकार के घोटाले हर रोज पढ़ कर सुन कर लोग हैरान हो गए थे. लोगों का लोकशाही डेमोक्रेसी पर से विश्वास उड़ गया था. 2014 में पंतप्रधान होने के बाद 9 साल के उपलब्धि में यह उपलब्धि है कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में लोकशाही के बारे में आस्था निर्माण की. लोक प्रतिनिधि के बारे में विश्वास निर्माण किया कि लोक प्रतिनिधि यानी भ्रष्टाचारी, वो पैसा ही खाएगा. वो स्वयं इस देश के पंतप्रधान भी मान रहे थे कि जब हम 1 रुपया नीचे छोड़ते हैं तो 84 पैसा के बीच में गायब होता है. तो ऐसी स्थिति में लोगों की मन की निराशा निकालने में
मोदी जी यशस्वी हुए, ये बहुत लोकशाही समृद्ध करने के लिए बड़ी बात है। 14 में जब मोदी जी का नाम पंतप्रधान के रूप में सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि हम मोदी जी को पंतप्रधान बनाने जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह आया, क्योंकि 15 साल के गुजरात के कामों की एक बैकग्राउंड उनके साथ में थी और लोगों को लगा था अच्छा ये व्यक्ति पंतप्रधान बनेगा तो देश का कुछ भविष्य अच्छा है। लोगों ने बहुत अच्छे वोट्स दिए और हम जानते हैं कि 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद देश में सत्ता आती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 282 मिली। मैं पहले ही बताया हूँ कि आंकड़े न बताते हुए मैं इस प्रकार के पार्श्वभूमि बताने में ज़्यादा समय देने वाला हूँ। उसमें 89 से लेकर इस देश में कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी, नरसिंह राव की भी नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी भी नहीं बनी, सबको किसी ना किसी को साथ में लेकर ही सरकार बनानी पड़ी। द फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 89 2014 गवर्नमेंट कि जिसमें मोदी जी को 272 की जगह 282 मिले। एनडीए अलग, एनडीए जोड़कर तो वो संख्या 300 सवा 300 होती थी। फिर और एक बात इंडियन डेमोक्रेसी में है कि 5 साल में आप कितना भी अच्छा सरकार चलाओ, 5 साल के बाद लोगों के मन में कुछ ना कुछ कंप्लेंट निर्माण होती है कि आपने भाई ये नहीं किया, हाँ ये किया अच्छा है लेकिन ये नहीं किया, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एंटी इनकम्पेंसी के कारण फिर गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होती या सीटें कम होती है। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने लोगों के मन में अपने कामों के कारण विश्वास ऐसा निर्माण किया, जिस विश्वास के कारण सरकार भी रिपीट हुई और सीटें भी बढ़ी, 282 की 303 बनी। तो मुझे लगता है कि योजना बताना, आंकड़े बताना ये आवश्यक है ही नहीं, जो एक आखिरी में 2-3 सेंटेंस में बताता हूँ। लेकिन विश्वास निचले आदमी तक ये निर्माण हुआ कि ये आदमी अब देश का परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन में सुख लाएगा, सुरक्षा लाएगा सबसे महत्व की बात, और अपने देश को दुनिया में बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। ये विश्वास के कारण ही गवर्नमेंट रिपीट भी हुई अगेन फ्रॉम 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 अपने बलबूते पर बने, किसी को साथ में ही लेना नहीं पड़ा, जो आए वो एनडीए में थे। में ये सरकार रिपीट भी हुई और सीटें भी बढ़ी, ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी मोदी जी की विशेषता यह रही 9 साल में, उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। 14 के बाद हमारा ऑफिस स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहनी चाहिए। फिर अलग अलग कंपटीशन लगना शुरू हुई कि अच्छी स्वच्छ कॉलोनी को अच्छा प्राइज़ मिले। करते 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 जिस विषय के लिए दुनिया के लोग हंसते हुए स्वच्छता के लिए अभियान करना पड़ता है, लेकिन वो आवश्यकता थी तो उन्होंने पीपल्स मूवमेंट बनाई। तो ये और एक विशेषता मोदी जी के है 9 साल के कामों में कि उन्होंने सर्वसामान्य व्यक्ति को देश के, कोविड उसका बड़ा उदाहरण है, कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया, सबको यह कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया, लोगों ने मोदी जी का सुना। ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष विपक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती हम जानते हैं। ऐसे ही एक बड़ा विषय बोलकर मैं फिर जो नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके माध्यम से लोगों को चाहिए वो बताता हूँ, वह है इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया। पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गांव में
फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बताती है कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो। इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो व्यापारी बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। 48 करोड़ 27 लाख ये अब तक जनधन के खाते खुले। जिस जनधन के खाते पर जीरो बैलेंस, यह कंडीशन है, जीरो बैलेंस है, बैलेंस नहीं रखा तो भी चलेगा, इससे सामान्य व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर पाया। और शुरू हुआ, हर सब्सिडी को हम डीबीटी करेंगे, अकाउंट में डालेंगे। 9 साल में 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ इतनी अमाउंट लोगों के अकाउंट पर अलग अलग प्रकार के योजना के तहत गई। योजना में बताना है जिसकी अमाउंट गई, तो कोई महिला गर्भवती होती है तो मातृवंदना नाम से उसके अकाउंट पर 6,000 रुपये जाना। हर विषय में लॉजिक कि ये हमारी गरीब बहन जब गर्भवती होती है तो आखिरी के दिन तक उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा। तो उसको एक 6,000 रुपये दिए जाए ताकि 2-3 महीने वो थोड़ा आराम करे, कुछ अच्छी दवाई ले, कुछ कच्चा खाना खाए। तो ये 6,000 रुपये पहले कैसे देते थे, तो वो कैश से देते थे। बार बार उस सरकारी ऑफिस का अधिकारी उसको चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उसमें से वो 100 रुपया 200 रुपया निकालता था। अभी निकालने का विषय नहीं, 6,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल है, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा। तो ऐसे मातृवंदना जैसे काफ़ी, जैसे अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमने निर्णय किया कि हम 6,000 देंगे। तो महाराष्ट्र में है अकाउंट 1 करोड़ 15 लाख, जिसमें मोदी जी के 6,000 जाएंगे, महाराष्ट्र शासन के 6,000 जाएंगे, 12,000 रुपये जाएंगे। मैं एक छोटे गांव से आता हूँ, 2200 लोक संख्या है हमारे गांव की। तो ये जब हमको 12,000 रुपया साल में मिलेंगे, तो हमारे खेती में जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होते हैं, बीज लेना है या फर्टिलाइज़र देना है, उसके लिए साहूकार के पास कर्जे के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। विषय चला है डिजिटल का, 6,000 रुपया प्रति साल सीधा उसके अकाउंट में जाना शुरू हुआ। एक बार 9 करोड़ लोगों का 18,000 कोटी, तो कुल मिलाकर अलग अलग योजना के कितने गए, तो 25 लाख करोड़ रुपए अकाउंट पर गए। तो इस प्रकार के इस देश का एक नक्शा बदलने का प्रयत्न, इस देश की आदत बदलने का प्रयत्न, इस देश के बारे में दुनिया में जो इमेज बनी थी, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको बैंकिंग आता नहीं है, ये अभी भी नोट लेकर घूमते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन अपनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश, सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाला देश, इस प्रकार की अपनी इमेज बनी। नई शिक्षा नीति ये बड़ा एक उदाहरण है कि जिसको बताकर मैं फिर आपको प्रश्नों के लिए छोड़ता हूँ कि इस देश में, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, इस घिसी पिटी शिक्षा पद्धति सालों से चली, स्वतंत्रता के बाद भी चली, जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स, अरे कोई नया कुछ है कि नहीं। परिणाम स्वरूप आर्ट साइंस कॉमर्स यही एक ऑप्शन था, तो लोग वो लेते रहे, ग्रेजुएट बनते रहे, उतनी नौकरियां नहीं रही, बेरोजगार बनते रहे। मोदी जी ने 2 प्रमुख रूप से प्राधान्य से कहा, 2 बातें। पहले तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर बल दो, ताकि अपने बच्चों को आर्ट साइंस कॉमर्स एक नॉलेज के लिए है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, तो स्किल डेवलपमेंट इज बेस्ट। और सबसे महत्व की बात उन्होंने कही कि इस शिक्षा में हमारी मूल संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे वंशज, इनको बताने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो स्कूली एजुकेशन में अब पहली के पहले 3 साल आएंगे, जिस 3 साल में जो आयु ऐसा है कि जिस आयु में कुछ बताया गया तो जिंदगी भर के लिए ध्यान में रहता है। उस 3 साल में ऐसे बेसिक चीज़ें अपने देश के बारे में, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में क्या एक पन्ने का जानकारी रहती है।
अब अपनी नई शिक्षा पद्धति में छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर 100 मार्क्स का एक अलग पेपर रहेगा। तो हम पढ़ेंगे क्योंकि 100 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है। अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर सारे महापुरुषों को बचपन में ही सिखाना, हमारे पूर्वज कौन है बताना, आक्रामक कौन है बताना, जो एक दूसरे से मिक्सचर हुआ है कि पूर्वज कौन और आक्रामक कौन, इस सारे विषयों को शिक्षा पद्धति से सिखाने का फर्स्ट वोकेशनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि पूरे दुनिया में अब लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा है, लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा, मैं दावे से कहता हूँ कि जिसका सीईओ ये भारतीय है या वहाँ जन्मा हुआ मूल भारतीय है, लगभग हर कॉरपोरेट का सीईओ। अब वो चाहते हैं कि भारत में तरुणाई ज़्यादा है, ग्रास्पिंग इनका अच्छा है, ये बहुत प्रामाणिक होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, होमसिक ज़्यादा होते नहीं है, तो ये हमको हमारे कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए। तो कहाँ से देंगे, आपके पास स्किल ही नहीं है। तो पूरे देश में मोदी जी ने ये आग्रह किया और जगह जगह स्किल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में हमारे 3 स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप हुई और हर नॉर्मल यूनिवर्सिटी को भी कंपेल किया गया कि आपकी डिग्री 3 साल के बजाय 4 साल की होनी चाहिए। और उस 4 साल में इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट है, योगा है, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, उसकी भी पढ़ाई आपने देनी है। 4 साल की डिग्री मुझे नहीं करनी है तो बीच में मैं छोड़ सकता हूँ, जितना किया है उसके क्रेडिट आपके डिजिटल बैंक में जमा होंगे। 10 साल के बाद फिर लगा के पढ़ना है तो ये डिजिटल बैंक में जमा हुए क्रेडिट आप यूज कर पाएंगे। दुनिया के डिजिटल बैंक में क्रेडिट जमा हुए, उसके लेकर लंदन में गए तो ये क्रेडिट जो है वो वहाँ माने जाएंगे, उस क्रेडिट को लेकर फिर अगली पढ़ाई होगी। ये बड़ी क्रांति शिक्षा क्षेत्र में भी लाई जा रही है। बाकी तो आप सब जानते हैं, पूरा दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो भी समय मुझे और भी लगेगा, क्योंकि अभी रक्षा वाले विषय में हम स्क्रू भी इंपोर्ट करते थे। हमारी मानसिकता ये हुई थी कि भाई ये रक्षा वाले सारे जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट ही करनी पड़ती। इस साल रक्षा के साहित्यों में 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, उसमें 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। ये बड़ा चमत्कार है कि रक्षा वाली चीज़ें अपने देश से लोग खरीदना शुरू कर दें। तो अपना देश स्वयं पूर्ण होने के लिए जो प्रयत्न 9 साल में हुए, उसके परिणाम स्वरूप आज देश के छोटे गांवों में भी लोग बोलते हैं हमको भारतीय जनता पार्टी मालूम है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा मालूम है मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मैं कल ही एक छोटे गांव में प्रवास कर रहा था तो मुझे एक उस गांव की बुढ़िया मिली, वो बोली मुझे ज़रा छोड़ो अगले गांव तक। तो मेरा स्वभाव है कि गाड़ी खाली नहीं जानी है, मैंने तो चलो। तो उन्होंने मुझे पूछा उनको क्या मालूम कि मैं मंत्री हूँ वगैरह वगैरह, हाथ दिखाया, गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि आप कौन हो, मैंने कहा कि मंत्री हो। तो कौन से पार्टी से हो, तो मैंने कहा बीजेपी। हाँ बीजेपी यानी मोदी वाली पार्टी, मोदी वाली पार्टी मालूम है। तो ये एक चमत्कार है, इतने बड़े देश में विषय को परकोलेट करना, विषय आखिरी आदमी तक पहुंचाना, ये बड़ी क्रांति मोदी जी ने की है। मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये जो हमारा प्रयत्न है कि मोदी जी के ये जो अलग अलग एंगल है कि जिन्होंने डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रख रहे थे लोग, उसमें से डेमोक्रेसी पर विश्वास रखने का शुरू किया, पॉलिटिशियंस पर विश्वास रखने की आदत लगाई, स्वच्छता की आदत लगाई, डिजिटाइजेशन की आदत लगाई। इसके बारे में और आपको और भी कुछ पूछना है तो पूछिए। फोटो लेके डांस किया गया है, हाँ, उस पर हमारे राज्य के डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर भी है, उन्होंने तुरंत वहाँ के एसपी को ऑर्डर दिया है कि नहीं चलेगा। क्योंकि अब ऐसा है ना कि जैसे जैसे हम अपने आग्रहों पर डटकर खड़े रहेंगे तो थोड़ी रिएक्शन आएगी ना। लास्ट वीक में ही अहिल्याबाई होळकर जी का मैका है नगर जिले में, जिसका नाम है चौंडी, वह बड़ा स्मारक बना है, अपने 1419 महाराष्ट्र में सरकार था तब बना। तो जब अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय उनके जन्मदिन पर गए तो उन्होंने घोषणा की कि ये अहमदनगर ये हमारा नाम नहीं है, हम अहिल्याबाई होळकर नाम देंगे। उसकी वो रिएक्शन है और वो रिएक्शन आना स्वाभाविक है, लेकिन उस रिएक्शन को हमने बख्शा नहीं है। डीसीएम ने, होम मिनिस्टर ने तुरंत एक्शन लेने की घोषणा की है। जल्दी ही
यानी आप वो अवार्ड जी वाला बोल रहे हैं? हाँ। अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के MUA के काफ़ी मिनिस्टर ऐसे हैं, नॉट ओनली MLA, कि जिन पर अलग अलग प्रकार के कन्विक्शन हुए। अपनी पद्धति ऐसे कि उस पर अपील में जाते हैं तो ऊपरी कोर्ट कहता है कि भाई हमारे सामने सुनवाई होकर निर्णय होने तक स्टे करो। तो अभी वो ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कितने दिन बचेंगे, क्योंकि जो मामले हुए हैं वो सीरियस ही है। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो उसे किस तरह देखते हैं? एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन आने में शिक्षा का प्रमाण अपने देश में, देश का साइज और पॉपुलेशन बड़ी होने के कारण जो आवश्यक है प्रमाण, तो उसमें सरकार तो पूरी ताकत लगा ही रही है। लेकिन यदि प्राइवेट पार्टी, कंपनियां हो या व्यक्ति हो, यदि अपने कंडीशंस को स्वीकार करके आती है, जैसे महाराष्ट्र में 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पहले दिल्ली से यूनिवर्सिटी ग्रांट, बहुत लंबी नियमों की यादी रहती है, फिर वो महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र में उनका कानून बन रहा है, बाकायदा कानून बन रहा है, हर यूनिवर्सिटी का अलग से कानून। उस कानून में उनको चौकट दी जाती है, इस चौकट के बाहर जाना नहीं। तो उनके पैसे लगाकर वो यदि बनाते, जैसे चौकट क्या लगाते हैं, फीस को मॉनिटर हम करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक दूसरे से इस प्रकार के शिक्षा में बहुत अग्रणी है, तो लगभग 70% से ज़्यादा विद्यार्थियों की फुल या हाफ फीस हम लोग भरते हैं। तो वो प्राइवेट वालों में ज़्यादा फी लगा नहीं सकते, उसके लिए एक अलग से रिटायर्ड जज की कमेटी होती है, लगाई भी तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करती है। नहीं, मोदी जी ने 2 बातें कही है शिक्षा क्षेत्र के बारे में। एक तो शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग के सारे किताबें हमने मराठी में कर दी। अभी IIT को काम देकर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के सारे किताबें मराठी में कर दी। तो ये आग्रह मोदी जी का। दूसरा आग्रह मोदी जी का यह है कि अपनी परंपरा को मालूमात होने के लिए, अपने पूर्वजों की जानकारी होने के लिए शिक्षा में आप इनफॉर्मल एजुकेशन से लो, आपके माताजी आपको कहानियाँ क्यों नहीं बताती, ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्मल एजुकेशन में वो लाना पड़ेगा। तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सावित्रीबाई फुले, जिनके कारण महिलाएं पढ़ी, महर्षि धोंडो कर्वे, ऐसे सारे लोगों के, और ये मोदी जी ने लाए हुए नई शिक्षा नीति का वैशिष्ट्य है, उन्होंने हर चीज़ को ऑप्शन रखा कि भाई आपको एक 100 मार्क्स का किसी एक थोर पुरुष का मनन करना ही है, तो आप तय करिए कि आपको अहिल्याबाई होळकर पर करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज पर करना है। तो ये गुजरात में भी होगा। ये थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा लेट हुआ, इसके कारण बीच में जो गवर्नमेंट दी 33 महीना, उन्होंने नए शैक्षणिक धोरणों का न भी नहीं उच्चारा, क्योंकि एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूव जो चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, हम नहीं मानेंगे। इससे महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ। गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार रही, तो शायद इस विषय में बहुत आगे गए होंगे। जून जुलाई की उनकी तैयारी क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह आग्रह पूरे देश में कॉमन है। पाटिल जी, महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर जो अनधिकृत दरगाह मजार बनाई की जाती है, क्या बना जाती है? दरगाह मजार अनधिकृत। अभी राज ठाकरे ने भी सभा में वो दिखाया था ड्रोन से, उसके बारे में क्या कहोगे, और महाराष्ट्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है इसके बारे में? आपको पता चला होगा कि सबसे बड़ा अतिक्रमण ये सातारा जिले में प्रतापगढ़ के पायथे के यहाँ था। तो वह अतिक्रमण निकालना ये बहुत बड़ा कठिन विषय था। वो अतिक्रमण बहुत शांति से निकाला गया, उस पर ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ, लेकिन उससे सारे जागरूक हुए। जैसे उस प्रतापगढ़ के पास जाते मेरे कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ पर, तो उस विशालगढ़ में जब अतिक्रमण निकालने का निर्णय हुआ, अतिक्रमण इतने हैं कि निकालने के लिए टेंडर निकला, तो वो समय मिला उनको और वो कोर्ट में गए, स्टे लाया। तो ये सारे अतिक्रमण लीगल है, इलीगल है, और उसको निकालने के ऑर्डर करना, ऑर्डर कोर्ट में टिकाना, ऐसा बड़ा मामला है। लेकिन यह निर्णय महाराष्ट्र शासन ने किया है कि इस प्रकार के जो अतिक्रमण है उसको नियम के अनुसार निकालना। थोड़ा स्लो है,
वही बता रहे ना। इसका कारण फिर से मैं हर विषय को 33 महीने वाले गवर्नमेंट पर नहीं डालूंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की हर स्कीम को विरोध करना, इसके तहत उन्होंने एक्विजिशन होने नहीं दिया। अभी ये सरकार आकर 11 ही महीने हुए, 30 जून को 12 महीने होने वाले हैं, तो बहुत स्पीडीली लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है।